network layer, which I have feel or need with explanation. So to set up all your fundamentals, or we can say basics over network layer. So now begin with this video. Hence we look at network layer services and what are the important points as functions, or we can say services offered by network layer. So the first service is packetizing. Actually, packetizing is the services in which encapsulation in network layer is used. Basically, encapsulation in terms of we can say the data transmitted from the transport layer, and transport layer the protocol is TCP, and transmitted to the network layer. So in network layer it can be controlled by the protocol of IP protocol. So this is the protocol IP. So it is used as a header in information, and this part will be known as payload. So payload consists with a header. It is the process used which is known as encapsulation, and encapsulation part will be transmitted to the receiver side, or we can say network layer of receiver side. So on the receiver side it again de-encapsulate for the transport layer. So packetization is very important service in the network layer. There is no any chance to change or to be made any changes possible at this packetization, which is similar to the concept of post office setup, where only job is to take or we transmit the letters and proceed to the particular destinations. So another service is forwarding. So forwarding is another major service of network layer. So in forwarding we assume that the source and this is the destination. So actually in the forwarding process we find the information of next hop in the network. So forwarding of packets by router is processed through a forwarding table. So easily हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे राउटर यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है. तो फॉर एग्जांपल दीज आर द राउटर्स which are placed in between of source and destination. So suppose that this is the router from which source process own data or payload through this destination. So first of all the in packet transmitted to this router, and after that this router contains some information, a major important information in terms of next hop. So this router contain information of what is the next router in the network, which will take this information or process to the network. So this can be done through forwarding process. So in forwarding every time जो राउटर होते हैं वो राउटर जो कि अपने में एक टेबल मेंटेन रखते हैं, और उस टेबल में एक जो इम्पोर्टेंट फील्ड है दैट इज़ नेक्स्ट होप, और उस नेक्स्ट होप के थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है और पैकेट होता है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द सोर्स टू नेक्स्ट होप. सो इन दिस वे फॉरवर्डिंग को हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं. सो समटाइम्स कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउटिंग, और वी समटाइम्स ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि राउटिंग को हम फॉरवर्डिंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं. सो राउटिंग का जो बेसिक पर्पज़ होता है दैट इज़ कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो एक ऑप्टिमाइज पाथ है वो कौन सा एग्जिस्ट करता है, हम उससे पैकेट को ट्रांसमिट करेंगे. जबकि फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि फॉरवर्डिंग में जब भी कोई पैकेट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, सो एवरी राउटर हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट होप और नेक्स्ट होस्ट. सो इन दैट केस जो पैकेट होगा वो फर्स्टली आइडेंटिफाई थ्रू द फॉरवर्डिंग टेबल ऑफ एनी राउटर, और उस राउटर में जो भी वो फील्ड होगी नेक्स्ट होप की उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई करेगा कि हम अगले किस राउटर में स्विच करें और जंप करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे पैकेट को फ्रॉम द सोर्स साइड. So this is the basic difference of forwarding and routing, and how can we achieve the forwarding process in the network. So इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे.
So now we are looking at the forwarding process. So in forwarding of packet, actually, what routers do when packet arrive at its interface, or we can say how does router know which interface should use in forwarding of the packet. So basically, uh, in the every router has got the forwarding table inside it, or a routing table you call it sometimes. So uh, अगर ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात करें हम यहाँ पर, सो जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है फॉरवर्डिंग का, उसमें क्या होता है कि so in forwarding process our traditional approach is, suppose this is router and the interface points are represent through M1 or M2. So this is the interface through which some terminal points are connected to this points. So how routers can manage or read the tables, generally we known as forwarding tables. So in this table there are basically three basic fields used. First one is called as a network address, including with network mask, and another field is next hop field. It is also in the form of IP address and interface. So from this table a router identify, or we can say determine, from which interface or which interface should be used to transmit the packet from the source to destination. So with the example we can easily understand this concept. So we take an example. So for suppose that we draw a diagram of a network, and in this network this R1 and R2 are the routers, and this R1 connected three different subnet, and R2 is connected to the rest of internet. So obviously this R2 is basically default router, or we can say this router is used as a gateway, and this R1 is connected to this default router. So in this whole terminology, how can we use a forwarding table at R1, or we how can design the forwarding table at this R1. So every time जो भी राउटर्स होगा जिस पर मुझे फॉरवर्डिंग टेबल को डिज़ाइन करना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे कनेक्टेड नेट्स हैं, सबनेट हैं, या जो भी हमारे नेटवर्क कनेक्टेड हैं उस राउटर से, उन सभी के नेटवर्क एड्रेस को उसमें वहाँ पर मुझे कवर करना होगा. सो इन दिस अब हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि दिस A1.B1.C1.128/25, so 25 is the masking of the network in this network, and mask of this network is 22 and mask of this network is 26. सो जो नेटवर्क एड्रेस को हम यहाँ मेंशन करेंगे उसमें इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस दिस मास्क को भी हम यूज़ करेंगे. सो नेटवर्क एड्रेस को हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिल करेंगे, और जो नेक्स्ट होप होगा तो इन सभी का भी यहाँ पर जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सभी का नेटवर्क जो नेक्स्ट होप है दैट इज़ द R1 पॉइंट. सो हम R1 को यहाँ पर नेक्स्ट होप में, क्योंकि R1 के लिए टेबल हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए ये फील्ड हमारे लिए उसकी नल रहेगी. नाउ द इंटरफेस की बात करें तो ये जो इंटरफेस पहचाने जाएंगे ये इनके पर्टिकुलर नेम से हम जानेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि दिस इंटरफेस नोन एज M1, सो इट कैन बी रिटन हियर इन M1 फॉर पर्टिकुलर नेटवर्क. सो कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे? सो इन दिस फॉरवर्डिंग टेबल first of all we select the higher length of subnet mask. So first of all we select 26. 26 is the highest value on this network. So first we select this network address with the mask. Now next hop is nothing and interface is M2. So now next 26 के बाद जो next higher value है that is 25. So 25 की जितनी IP एड्रेस है हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर पुटअप करेंगे. Now next the interface is M0, so M0. सो नाउ नेक्स्ट इज A22. सो इस वैल्यू को भी हम यहाँ कवर करेंगे फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री में, और M1 जो इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ द लोकल नेटवर्क. नाउ रेस्ट इंटरनेट अगर कोई कनेक्टेड है वहाँ पर किसी पर्टिकुलर IP के थ्रू, डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर कोई है वहाँ मेंशन, तो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे को लास्ट में मेंशन करेंगे. सो डिफ़ॉल्ट गेटवे सपोज दैट है A.B.C.D. सपोज 26 मास्क के थ्रू ये कनेक्टेड है. सो 26 तो हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट होप है उसमें सिर्फ IP एड्रेस आएगा फॉर नेक्स्ट होप की IP. सो इसको मैं मेंशन करके जिस इंटरफेस से कनेक्टेड है दैट इज़ टू बी मेंशन हियर. सो इस तरीके से फॉरवर्डिंग टेबल की हम एंट्री करते हैं. सो अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे ये फॉरवर्डिंग टेबल वर्क करती है एक्चुअली में. अगर कोई पर्टिकुलर पैकेट हमें रिसीव हो रहा है फ्रॉम द सोर्स साइड और फ्रॉम एनी इंटरफेस ऑफ द सोर्स साइड, सो हम कैसे फॉरवर्डिंग टेबल की हेल्प से उसको
आगे फॉरवर्ड करते हैं, इसको हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखेंगे। सो आवर प्रॉब्लम इज़ what is the forwarding process if packet arrive at R1 with destination address is 180.70.65.140। तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कोई भी राउटर ये चीज़ को फिक्स करता है कि हाँ पर्टिकुलर जो हमें पैकेट पहुंचा है वो एक्चुअली में क्या उसका ट्रांसमिशन के प्रोसेस होना चाहिए। सो नाउ हम इसको यहाँ पर देखेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको राउटिंग टेबल जो हमने यहाँ पर फाइनलाइज़ की है, इस राउटिंग टेबल में सबसे पहले हम 26 जो राउटर होगा इस आईपी को, गिवन जो आईपी है इस आईपी को हमारे इस आईपी के उससे मैच करेगा। अगर ये मैच करेगा तो इट्स ओके, एज्यूम दैट कि M2 इंटरफेस को वो प्रोसेस करेगा। अगर नहीं मैच करता है तो नेक्स्ट हम एंट्री में फिर इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस कि हम कैसे उसको मैच करता है राउटर एवरी टाइम। सो वी सी हियर। So given IP address is 180.70.65.140. So first of all we check from the given table entries. So in table entries 26 mask should be taken first. So 26 mask का मतलब हुआ कि जितना भी हमारा IPv वर्जन 4 का एड्रेस कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टू डिपेंड अपॉन 32 बिट्स. So in case, so 8 bit for this, 8 bit for this, 8 bit for this and 8 bit for this. So all these 8 bits combined अगर हम यहाँ पर देखें तो these all are 32 bits एड्रेस रोटेशन. सो अभी हम डिटेल में नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे जिसमें हम एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में बता देंगे, बट टुडे हम आज डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्डिंग के प्रोसेस को, इसलिए अभी हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं कि आईपी एड्रेस में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है. सो तो प्रॉब्लम जो हमें अब कह रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हम 26 मास्क की बात की जा रही तो 26 के मास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट एंड 8 बिट. सो दीज वैल्यूज़ आर 24 बिट्स एंड 2 बिट मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस field. So it will represent as a 26 bit. So 26 बिट के रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर पहले तो देखेंगे. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब मास की रिप्रेजेंट बात करते हैं तो 140 को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 140 कैन बी रिप्रेजेंट एज, सो द बाइनरी वैल्यू ऑफ 140 हम सिर्फ लास्ट बिट की तरफ फोकस करेंगे सबसे पहले. तो लास्ट बिट में 140 जो हमारे पास है इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 100011000. सो दिस इज़ अवर बाइनरी नोटेशन ऑफ 140. एंड अगर हम 26 मास की बात करें तो यहाँ तक तो जितनी भी वैल्यू वो सभी 1 1 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4. सो ऑल 8 बिट्स आर वंस. सो सेम हियर, ऑल 8 बिट्स आर वंस. सो 2 more and all 8 bits are ones also, and from this 2 bits, so 2 bit are ones and rest bit 3. so this is the mask value and इसको हम इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे. so 1 1 0 0 0 0 0 0. so 1 this value 1. हम जो गिवन मास्क है उसकी 26 बिट. सो 26 बिट ये हमारी जो 2 बिट्स हैं ये 26 बिट हो जाती हैं जो बाइनरी में कन्वर्टेड है. ऑल दीज आर जीरोस. और जो 140 हमें गिवन है जिसको प्रोसेस हमें चेक करना है, इसको हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम गिवन मास्क के साथ प्रोसेस करेंगे. सो तो हम रिजल्ट को फाइंड करेंगे क्या इससे मैच हो रहा है कि नहीं. सो 1 0 0 1 1 0 0. जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमको यहाँ एंड परफॉर्म करेंगे. आफ्टर परफॉर्मिंग एंड वी गेट 1 0 0 0 0 0 0 0. सो हम चेक करेंगे तो हमको दिस इज़ द 128. सो वी कैन सी हियर. सो अब हम इसी एड्रेस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. 180.70.65.128. सो चूँकि हमने इसको 26 के मास के साथ यूज़ किया है, तो 26 में जो हमारी एंट्री थी, सो राउटर चेक दिस, हमारे पास जो एंट्री थी 26 में दैट इज़ A3.B3.C3.192/26 एंड वी गेट द वैल्यू 120.70.65.128/26. so that means this value not match with this entry, first entry. so it will check again for next entry. so next entry में हम अगर जब चेक करेंगे तो हम इसको प्रोसेस करेंगे 25 के मास के साथ. तो 25 के मास के साथ जब प्रोसेस करेंगे तो वी कैन रिटर्न इज 25 का मास हमारा बनेगा 8 + 8 + 8 + 1. सो दैट मीन्स 8 8 16 एंड 8 24 + 1 25. सो 25 का जो मास होगा दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस. तो इसकी लास्ट जो बाइट है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इट कैन बी रिटर्न एज दिस. और जो हमको एड्रेस प्रोसेस करना है 140, तो उसका बाइनरी नोटेशन ये है जिसको हम इसके साथ प्रोसेस करेंगे. सो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. सो हम इसको जब एंड परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, सो वी गेट 1 0 0 एंड 0 0 0 0. सो वी कैन राइट इट इन दिस वे. सो दैट मीन्स इसको हम अगर लिखें तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 180.70.65.128/25. दैट मीन्स हम उसको यहाँ पर इस एंट्री में इसके ऊपर और इसके ऊपर फोकस करें. तो 25 एंट्री को जो हमने सर्च किया है दिस इज़ दिस एंट्री
और इसका जो हमारे पास वैल्यू दैट इज़ 128, दैट मीन्स इट शुड बी मैच विद दिस एंट्री. सो राउटर कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वैल्यू गो इनटू दिस इंटरफेस और प्रोसेस फ्रॉम दिस इंटरफेस. सो M0 के लिए प्रोसेस कर जाएगा. सो इस तरीके से जो राउटर होता है वो फॉरवर्डिंग प्रोसेस को फिनिश करता है. तो इस तरीके से चेक करते हुए सभी एंट्रीज़ को फाइनली चेकआउट करके ये चीज़ कंफर्म करता है कि ये जो पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए प्रोसेस किया गया है उसको हम किस तरीके से फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस स्विच करेंगे. इट कैन बी यूज थ्रू फॉरवर्डिंग टेबल. सो नाउ द अनदर प्रॉब्लम इज इन दिस प्रोसेस इज़ दैट कि जो हमारे पास ये फॉरवर्डिंग टेबल की जितनी भी एंट्री हैं वो क्या ये सफिशिएंट है. अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ बहुत ही मास में अगर ये हमारे पास एंट्री इस टेबल में हो सो राउटर को ये पूरी एंट्रीज़ को चेक करने में प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल. सो इस केस में फॉरवर्डिंग टेबल को हम एक नए तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम फिर फॉरवर्डिंग टेबल को उसके दूसरे कॉन्सेप्ट से इम्प्लीमेंट कर देते हैं. और मोस्टली दिस कॉन्सेप्ट वी यूज़ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल सर्किट डेटाग्राम. सो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे. सो इन फॉरवर्डिंग टेबल की जगह पर हम क्या प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे. तो इसके लिए क्या करते हैं. सो इन इफ़ वी सपोज दैट इम्प्रूवमेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें सो इम्प्रूवमेंट्स कैन बी परफॉर्म यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबल्स. सो इफ़ वी use a concept of labels in place of forwarding tables so it can be generally known as a switching table. सो स्विचिंग टेबल में जब कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कि जो वहाँ पर इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पर इमीडिएटली मिल जानी चाहिए जिसके लिए मुझे वहाँ पर प्रोसेस ना करना पड़े चेक करने का. सो इंटरफेस वैल्यू एंड जो हमारे पास नेक्स्ट लेबल होगा उसके. तो इस केस में क्या होगा कि जो एंट्री ऑफ लेबल्स होंगे सो लेबल को हम यहाँ पर इंडेक्स में यूज़ करेंगे. सो लेबल की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से यहाँ पर सभी के सभी लेबल्स इनपुट होंगे. और ऐसे केस में जो सेंडर साइड से हमें लेबल्स की इन्फॉर्मेशन आईपी हेडर में मेंशन होगी और वो आईपी हेडर में जो लेबल्स वैल्यू होंगी दीज लेबल्स शुड बी मैच विद पर्टिकुलर इंडेक्स. और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या इंटरफेस की वैल्यू है. सपोज दैट इफ़ वी टेक 2 सो इन पर्टिकुलर सेकेंड इंटरफेस व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेबल कॉल्ड. सो नेक्स्ट लेबल इट इज सपोज दैट एक्स. सो नेक्स्ट लेवल पे वो वैल्यू स्विच कर जाएगी. सो डायरेक्टली इट कैन बी प्रोसेस और देर इज़ नो एनी टेक मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम टू परफॉर्म the forwarding tables as used in the previous concept used in forwarding. So this is a more interactive objective process used in switching tables. और जनरली दिस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं वर्चुअल सर्किट डेटाग्राम में. सो वर्चुअल सर्किट डेटाग्राम में जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कि हमारे पास सोर्स है और डेस्टिनेशन है. फॉर एग्जांपल सो डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में वेरियस पाथ एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर. तो सपोज दैट दिस इज़ द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस फर्स्ट वी यूज़ इन वर्चुअल सर्किट डेटाग्राम. सो एवरी टाइम जब भी कभी सोर्स को पैकेट ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन और सपोज वी एज्यूम दैट कि जो सोर्स के पास पैकेट का अरेंजमेंट है वो सपोज दैट 1 2 3 4 इस ऑर्डर में पैकेट हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड करने हैं. तो वर्चुअल सर्किट डेटाग्राम में क्या होगा कि फर्स्ट इट इज़ सेटअप अ कनेक्शन बिटवीन डेस्टिनेशन टू सोर्स. इट सेंड ए पैकेट टू router and router can update on entry and for example it takes such type of rules and for making a connections. So it destination acknowledge to the source for this request. So जैसे ही डेस्टिनेशन इस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज के थ्रू फुलफिल करता है इट मेक्स अ वर्चुअल सर्किट और वी कैन से इट मेक्स अ वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. और जैसे ही वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है आफ्टर दैट दीज पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस रूट. सो इस अप्रोच से एक तो फ़ायदा ये हो जाता है यहाँ पर नेटवर्किंग में कि जितने भी पैकेट्स हैं वो जिस ऑर्डर में सेंड किए जाते हैं उसी ऑर्डर में ही डेस्टिनेशन को प्रोसेस हो जाते हैं. उसमें कोई भी आउट ऑफ ऑर्डर का फिनोमिना नहीं उसमें दिखाई पड़ता. अगर यही चीज़ हम डेटाग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ करें तो डेटाग्राम के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम डेटाग्राम में सपोज दिस इज़ अवर सोर्स एंड दिस इज़ अवर डेस्टिनेशन और सपोज इसके बीच में कई सारे राउटर्स पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे और सपोज यहाँ पर जो पाथ हैं दैट इज़ दिस वे और दिस वे और दिस वे. सो सपोज़ अगर 1 2 3 4 पैकेट के ट्रांसमिशन की बात करें तो सपोज़ 4 अगर सबसे पहले आया ऑर्डर में तो 4 को वो इस तरीके से पाथ में यहाँ पर ट्रांसमिट करेगा. सो 4 यहाँ पर रिसीव हुआ. नाउ अगेन 3 को लेंगे तो 3 को सपोज उसने यहाँ से ट्रांसफ़र किया और 3 मेक्स अ डिले और सपोज़ 2 को फिर यहाँ से प्रोसेस किया और 3 के पहुँचने से पहले डेस्टिनेशन में पहले 2 पहुँच गया. तो इस तरीके से ऑर्डर एक रिसीव होगा. सो इट मीन्स कि यहाँ पर फिर हमें एक और प्रोसेस ऐड ऑन करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट में अगर हम डेटाग्राम यूज़ करते हैं कि वहाँ पर फिर मुझे इन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रीअसेंबली को कॉल करना पड़ता है. तो इस वजह से वर्चुअल सर्किट टेक्निक्स इज़ मोर सिग्निफिकेंट ओवर द डेटाग्राम अप्रोच. सो इन नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कैसे राउटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एल्गो के हेल्प से.
Thank you.